Good evening, dear student. Let's start today's class. And up to now, we have completed our discussion that what is your conductance, what is specific conductance, what is molar conductance, what is equivalent conductance. These are the topic we have already discussed, and also we have discussed about their units and also relation between them. If you will recall the topic of last classes, then you will I think you can recall it properly, that we have discussed that conductance which we are saying G, that is nothing but the reciprocal of resistance. This is the reciprocal of resistance, and what is its unit? Its unit is your ohm inverse. You can write ohm inverse or Siemens or mho. These are the simple thing a student has to be very clear when he is dealing with or she is dealing with electrochemistry. सी जिते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सांगे डील करुच्ची ता पाखरे एतकी इनफॉरमेशन मस्ट रहिबा कथा. ठीक सेमती कापा वी हैव आल्सो डिस्कस दैट कापा इज इक्वल टू 1 by rho. व्हाट इज कापा? Kappa is called your specific conductance. Kappa is called your specific conductance. I hope you all clear on this. Kappa को आमे एठी specific conductance कहू, and that is 1 by rho. 1 by rho को आमे kappa कहिबा. Okay, kappa is your 1 by rho, and what will be its unit? Its unit will ohm inverse centimeter inverse. I hope you all are clear on this. And also we have discussed about the molar conductance. What is molar conductance formula? Molar conductance formula was, there was two formula for molar conductance. Molar conductance is equal to kappa into V, but this formula was utilized for the calculation of the original formula will be kappa into 1000 by molarity. This is the formula for molar conductance. What was its unit? Its unit is your ohm inverse centimeter square per mole. This is the unit of your molar conductance. Similarly, what is the formula for your equivalent conductance? Kappa into 1000 by molarity. It was molarity, means here in molar conductance it was molarity, and in equivalent conductance it will be normality. And what is the unit? Unit will be ohm inverse. Clear? Ohm inverse centimeter square, and here it will be gram equivalent inverse. It is gram equivalent inverse. I hope you all are clear on this. एतकी समस्ते क्लियर थिबो. एथिरे काहरीर भी डाउट नै थिबा लेखन मते लागुचे. गोटे हला तमर कंडक्टेंस, आ गोटे हला स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आ गोटे हला मोलार कंडक्टेंस, आ गोटे हला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. आउ ए मोलार कंडक्टेंस कापा इंटू वी कले, ठीक सेमती इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रे भी आमे कापा इंटू वी करि पारिबा. ए रिलेशनटा भी तुमे जानिथिबो यार रिलेशन डिराइव कला बेले. बट दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. आउ समस्तंगर यूनिट सब बेले मन रखिथिबो. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस, ए वीडियो लेक्चर रे आमे डिस्कशन करबा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन ऑल दिस. माने कंडक्टेंस ऊपर डाइल्यूशन रो कोन इफेक्ट रहिबो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऊपर डाइल्यूशन रो कोन इफेक्ट रहिबो, मोलार कंडक्टेंस ऊपर डाइल्यूशन रो कोन इफेक्ट रहिबो, एवं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऊपर तुमरो डाइल्यूशन रो इफेक्ट कोन रहिबो. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. मते लागुची लास्ट ईयर और तार गुटे वर्ष पूर्वरु ई क्वेश्चनटा आसीथिला, discuss the effect of dilution on conductance. So, and we will not discuss about only conductance, we will discuss about also effect of dilution on specific conductance, on molar conductance, as well as on equivalent conductance. आमे ए समस्तंक उपरे dilution रो कोन effect रहिबो, that we are going to discuss. So this is your today's class. इटा जस्ट मु प्रीवियस क्लास रो रिव्यू नौथली, बा प्रीवियस क्लास रे कोन कोन डिस्कशन करा हिची सेटा मु तुमको टे रिकॉल कराउथली. सो नाउ पुट हेडिंग इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन व्हाट, का ऊपर हम डिस्कशन कर माजी रो की पॉइंट. I mean this is the key point of this video. Effect of dilution.
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कहा का उपरे जोटा आम डिस्कसन करवा वी विल डिस्कस ऑन कंडक्टेंस कंडक्टेंस उपरे डाइल्यूशन कौन इफेक्ट रहिबो सिमिलरली वी विल आल्सो डिस्कस इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इक्वल कापा जहाँ को आम कापा कहू कंडक्टेंस को जी बा सी कहले भी चलिबो इफेक्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आम कापा कहू एंड आल्सो वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on molar conductance and your equivalent conductance. This we are going to discuss in this video. ए वीडियो रे आमे ए सबू डिस्कशन करिबा माने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन आउ डाइल्यूशन वर्ड कौन मु तुमको डी आगुरु ऑलरेडी बुझेइतिली डाइल्यूशन मीन्स यू आर एडिंग मोर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट तुम्हें जो अधिक ऐड करुच बा तुम्हें जो अधिक डाइल्यूशन करुच बा तुम्हें जो अधिक सॉल्वेंट ऐड करुच से समय तुम कौन हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर मन रख इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अर्थ है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन दिस इज द मीनिंग डाइल्यूशन माने आमे सॉल्वेंट ऐड करुचे बा कंसंट्रेशन को आमे डिक्रीज करुचे जस्ट आई एम राइटिंग दैट मीनिंग डाइल्यूशन रो मीनिंग कौन गोटे पिला जानिछबा कथा डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट आ पर्टिकुलरली इथे हमर सॉल्वेंट की रहिबो हमर से सब्सटेंस रे हम कहार सॉल्यूशन तो एक्वा सॉल्यूशन होथिले एडिंग ऑफ सॉल्वेंट SOLVENT माने हमें एठी पर्टिकुलरली वाटर ऐड करूथिले बिकॉज हमर जो एक्वा सॉल्यूशन ही हमें नउथिले सो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट बा वाटर ऐड कला पर कोन होउची इफ यू आर एडिंग द सॉल्वेंट सॉल्यूट अमाउंट इज फिक्स्ड that's why what you are doing ultimately decreasing the concentration तमें सॉल्यूशन रो concentration को decrease करूछ सो एक्चुअली बेसिकली सहज मीनिंग रे एटा कोन हला ताले इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन माने इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट तो मते लागू छे समस्त डाइल्यूशन रो मीनिंग बुझी गला सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन आमे प्रथमे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on conductance we will discuss on conductance C बा G जोटा लिखिले भी चलिबो effect of dilution on conductance और C और G so it is very simple to understand आ मते लागु छै मुटा ऑलरेडी बुझे भी थिली बट ताको आउ थरे चलो डिस्कशन करबा एबे सपोज हमर गोटे कंटेनर रहिला सेही कंटेनर रे we have taken a solution आमे गोटे सॉल्यूशन नै छी in that solution we have water is the solvent and we have an electrolyte आम पाखरे electrolyte अच्छी we have electrolyte and you know that electrolyte basically are of two types one is strong electrolyte and another one is weak electrolyte strong electrolyte means it has more conductance because it undergo complete ionization in the solution and weak electrolyte these are partially ionized in aqueous solution and with reference of example आम एठी strong electrolyte रे KCl नहीं जिबा आ weak electrolyte रे मु acetic acid नहीं जिबी just बुझेबा पई मु कहूची so एटा हमर थिला सेटअप टा now we will discuss what is the effect of dilution on the conductance of a strong electrolyte solution and of a weak electrolyte solution तो आम कंडक्टेंस जो डिस्कसन करिबा आम उभय टाइप रो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रे डाइल्यूशन रो कोन इफेक्ट रहिबो सेटा आम डिस्कसन करिबा सो हियर इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस of or effect of dilution on conductance of strong electrolyte one we will discuss and also we will discuss effect of dilution on conductance of weak electrolyte बुझी देखो खाली कंडक्टेंस कहि देला माने से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस इफेक्ट भी तुमको डिस्कशन करबा को पड़िबो एवं weak electrolyte रो कंडक्टेंस ऊपर भी डाइल्यूशन रो इफेक्ट कोन डिस्कशन करबा को पड़िबो मन रखो कंडक्ट सो आवर टॉपिक विल बी नाउ डिवाइडेड इनटू टू that effect of dilution on conductance of strong electrolyte सेटा चला हम प्रथमे डिस्कशन करिबा effect of dilution of conductance of कहारो conductance of strong electrolyte आमे प्रथमे strong electrolyte रो डिस्कशन करिबा देखो सबु बेले टॉपिक को केते छोट करि पारुजो सेटा इंपोर्टेंट केते सिंप्लीफाई करिका हम लिखि पारिबा
आम कंडक्टेंस माने दुईटा को बुझाऊँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंडक्टेंस को बुझाऊँ एवं वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस आम वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को भी बुझाऊँ तो उभयर कंडक्टेंस अलग अलग आसे तो तांको ऊपर डायल्यूशन कौन इफेक्ट हे डिस्कसन करने हेले वी नीड टू डिस्कस देम सेपरेटली आमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टेंस सेपरेटली डिस्कसन करने पड़ो एवं वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टेंस उपरे डायल्यूशन इफेक्ट सेपरेटली डिस्कसन करने पड़ो सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो माने मुझे इलेक्ट्रोलाइट को फिक्स करदेली तो इलेक्ट्रोलाइट को फिक्स करदेली माने काना इलेक्ट्रोलाइट सपोज मोर रहा H2O प्लस KCl H2O प्लस KCl नाउ थिंक सपोज आम 10 ml सॉल्यूशन नहीं 100 ml आम नहीं वी हैव टेकन द 100 ml सॉल्यूशन से 100 ml सॉल्यूशन रे आम 100 ml वाटर नेले एवं से आम KCl ऐड करूँ एंड एज यू नो दैट this 100 ml addition of solvent with KCl is a strong electrolyte so as it is a strong electrolyte एमती लिखुची आम KCl को 100 ml water सहित नेले so as it is a strong electrolyte what you will find all K plus and Cl minus ion will dissociate but सबू K plus Cl minus ion dissociate हो जिबे because it is a strong electrolyte and it undergo 100% dissociation सी 100% dissociate हुए माने मु जदि एठी 100 ml रे नीची 100 ml बोली नाही तुम जे कोनसी गुड ml सॉल्व बा किछि गुड सॉल्वेंट नेलो तुमे सब 100 ml न नै कि हम एठी 10 ml भी नै जाओ बट 20 ml ले जाओ मुझे सब बुझिया पई कहूची 20 ml लेले एठी 100 KCl अछि एक्चुअली एठी 100 KCl बुझिया पई मु 20 ml लेली नले 100 कन्फ्यूजन आसीबो तो 100 KCl 20 ml नेला परे व्हाट आई विल फाइंड एज इट इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट I will get 100 K plus and 100 Cl minus. तो जहाँ भी एठी conductance आसीबो that will be due to the 100 K plus ion and 100 Cl minus ion. So all these ions are responsible for the conductance of electricity in the solution or for the conductance. By इस 100 K plus ion or 100 Cl minus ion तुम्हारा conductance को decide करिवे. Whatever will be the conduction or whatever will be the conductance. ठीक सेमती आम से 100 KCl न्यू ए 20 ml न नहीं कि आम आउ वाटर ऐड करदे सपोज वी टेक इट 40 ml आम 40 ml ले ले देन हाउ मेनी आयन्स यू विल गेट द नंबर ऑफ आयन्स इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज दे आर ऑलरेडी 100% डिसोसिएट से माने 100% डिसोसिएट हो सारे तो सेठी आउ अनडिसोसिएटेड आयन आउ नाही तो जदि अनडिसोसिएटेड आयन नाही देन नंबर ऑफ आयन्स इज नॉट गोइंग टू चेंज सो द नंबर ऑफ आयन्स विल बी स्टिल रिमेन सेम से 100 K प्लस आउ 100 Cl माइनस ही रहिबो तो नंबर ऑफ आयन्स इज नॉट गोइंग टू चेंज इन केस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इफ यू आर एडिंग द सॉल्वेंट आम सॉल्वेंट ऐड करने द्वारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रो नंबर ऑफ आयन्स रे कौन चेंजेस आसुना ठीक सेमती 40 ml कहीं मुझे 60 ml भी नेबी ताहले भी मुझे ही 100 K प्लस आयन आ 100 Cl माइनस आयन ही पाइबी सो आई विल गेट द सेम 80 ml नेले भी मुझे से 100 K प्लस एंड 100 Cl माइनस आयन ही पाइबी सो इन केस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डायल्यूशन द नंबर ऑफ आयन्स इज नॉट गोइंग टू चेंज ये समस्ते बुझीपार तो ये गोटे पिलार माइंड रे क्वेश्चन आसीपारे एबे तो ताहले सर एठी भी 100 K प्लस 100 Cl माइनस आयन थिला एठी भी 100 अछि एठी भी 100 तो टोटल 200 आयन सबुथरे रहउची मींस कंडक्टेंस शुड रिमेन सेम कंडक्टेंस समस्तंकर समान रहबा कथा माने डायल्यूशन कले भी कंडक्टेंस चेंज हेबा कथा नुह बट इट इज नॉट लाइक दैट एटा ता कारण बा दिस इज नॉट ट्रू एटा सत्य नुहे बा यू आर रॉन्ग एठी जदिओ नंबर ऑफ आयन्स तुमर फिक्स्ड रहिला कंडक्टेंसटा एक्चुअली दुईटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे गोटे होची नंबर ऑफ आयन्स आ गोटे होची आयोनिक मोबिलिटी माने आयन्स मानकर मूवमेंट केते होची दैट्स टू फैक्टर डिसाइड द कंडक्टेंस एक्चुअली कंडक्टेंस उपरे दुईटा फैक्टर डिसाइडिंग हुए कंडक्टेंस बा कंडक्टेंस दुईटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे गोटे हला नंबर ऑफ आयन्स आ गोटे हला आयोनिक मोबिलिटी तो आयोनिक मोबिलिटी माने मूवमेंट ऑफ आयन्स बोथ तो जदि नंबर ऑफ आयन्स बढ़िबो ताहले कंडक्टेंस बढ़िबो एज वेल एज with increase in ionic mobility also conductance increases एटा मन रख नंबर ऑफ आयन्स बढ़िबा द्वारा कंडक्टेंस बढ़े एवं आयोनिक मोबिलिटी बढ़िबा द्वारा मध्य कंडक्टेंस बढ़े सो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स एज वेल एज
टू द आयोनिक मोबिलिटी माने आयन्स मानकर मूवमेंट उपरे भी कंडक्टेंस निर्भर करे। तो एटा गोटे ट्रिक पॉइंट तुम लिखि देथिबो की पॉइंट गोटे की पॉइंट माने कोन एनबी करी तले लिखि देथिबो सब बेले एटा फंडामेंटल पॉइंट गुडा को। सो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स माने कौन सी जगह जो नंबर ऑफ आयन्स बढ़िला ताहले कंडक्टेंस निश्चय बढ़िबो। ठीक सेमती कंडक्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक मोबिलिटी माने आयोनिक मोबिलिटी उपरे भी कंडक्टेंस डिपेंड करिवो बा आयन्स मानकर मूवमेंट जदि बढ़िबो ताहले कंडक्टेंस बढ़िबो। तो दिस रीजन इज नाउ नॉट वैलिड बा एठी द नंबर ऑफ आयन्स फिक्स्ड अछि। तो नंबर ऑफ आयन्स द्वारा यार कंडक्टेंस को लेकर आम डिफाइन करि परिबा नाही। सो आम नंबर ऑफ आयन्स को जदि आम कंसीडर करबा ताले समस्त कंडक्टेंस फिक्स्ड हबा कथा। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज द आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी कोन होउची देखो जेते बेले आम 20 ml सॉल्यूशन नउछे सेही टाइम रे तार वॉल्यूम कमी रहउची बा वॉल्यूम कम होउची। सो वॉल्यूम इज वेरी लेस जिते वॉल्यूम लेस आउ जिते मु 40 ml नेली माने वॉल्यूम आउ टिके बढ़ी गला। सो वॉल्यूम इंक्रीजेस जिते बेले एटा फर्स्ट केस कथा कहली एटा हला 20 ml रे एटा 40 ml रे जिते बेले आम 60 ml ले गले वॉल्यूम आउ बढ़ी गला। देखो 60 ml नउछे माने वॉल्यूम आउ बढ़ुची। सो 60 ml नेले वॉल्यूम आउ बढ़ी गला 80 ml नेला परे वॉल्यूम आउ बढ़ी गला। So in all these cases volume of solution is increasing but number of ions are not increasing। number of ions बढ़ू नहीं केवल समस्तंकर वॉल्यूम बढ़ुची। एबे देखो इस 20 ml वॉल्यूम रे आयन आयन भितर डिस्टेंस जते कि थिला 40 आयन जते 40 ml वॉल्यूम हे जिवो तो डेफिनेटली तांको भितर डिस्टेंस बढ़ी जिवो कि नहीं। सो K प्लस और Cl माइनस आयन भितर जो डिस्टेंस टा हमें कहूचे व्हाटएवर द डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड Cl माइनस आयन K प्लस आउ Cl माइनस आयन भितर जो डिस्टेंस टा अच्छी 20 ml वॉल्यूम रे जतिक डिस्टेंस हबो 40 ml हेले से डिस्टेंस टा बढ़ी जिवो। ठीक सेमती 60 ml हेले डिस्टेंस आउ बढ़ी जिवो तो 80 ml हेले डिस्टेंस आउ बढ़ी जिवो माने इंटर आयोनिक डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम बिकॉज लार्जर सरफेस एरिया तुम पाइगल। दीटा पिला को तुम छोट घरे रखिबो आ दीटा पिला को बड़ घरे रखिबो तो कौ जगह तांको भितर डिस्टेंस बेसी रहइबो जेतेले से बड़ घरे रहिबे। ठीक सेमती K प्लस और Cl माइनस आयन भितर डिस्टेंस टा 20 ml रे कम रहिबो 40 ml रे आउ टिके अधिक हबो 60 ml रे आउ अधिक हबो 80 ml रे आउ अधिक होई जिवो। So the distance between the ion is increasing with increased volume। एटा गोटे फैक्टर आसीगला देखो वॉल्यूम जते बेले आमे बढ़ौछे when we are increasing the volume the interionic distance बा आयन आयन भितर डिस्टेंस बढ़ुची। एबे देखो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन भितर यदि डिस्टेंस बढ़िला तो तांको भितर अट्रैक्शन कम हबो कि नहीं। जदि अट्रैक्शन कम हैला ताकर मूवमेंट बेसी हबो कि नहीं। देखो मोते जदि के बांधी की धरी थिबो तो डेफिनेटली मोर मूवमेंट स्लो हो जिवो सब मते टाणुची। इफ समबडी इज पुलिंग मी तो डेफिनेटली माय मूवमेंट विल बी स्लोअर बट इफ नोबडी इज पुलिंग मी आई कैन मूव फ्रीली मूव करि परिबी। तो अट्रैक्शन कमिबा द्वारा आयोनिक मोबिलिटी बढ़िबो। दिस इज द फैक्टर और दिस इज द की पॉइंट माने वॉल्यूम बढ़िबा द्वारा और ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कहि पारो और on addition of solvent कहि पारो or on decreasing concentration the interionic distance decreases and as the interionic distance decreases that's why the force of attraction between the ions decreases and hence their ionic mobility increases or the ionic mobility by ions can move freely। आ जिते बेले आयन्स माने फ्रीली मूव करि परिबे से माने कंडक्टेंस को बढ़ेइबे। बुझी पारलो समस्ते। तो नंबर ऑफ आयन्स को नहीं कि तो कंडक्टेंस रे इफेक्ट आसु नहीं किंतु बा कंडक्टेंस रे चेंजेस आसु नहीं किंतु आयोनिक मोबिलिटी बढ़िबा द्वारा डाइल्यूशन करिबा हेतु तुमर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रो कंडक्टेंस बढ़िबो। सो डिड यू गॉट माय पॉइंट। सो द ऑन डाइल्यूशन एटा समस्ते बुझी पारथिबो तो गुड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डाइल्यूशन करिबा द्वारा कंडक्टेंस बढ़े एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द कंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड due to increase in ionic mobility। This is the reason, not due to the increase in number of ions. No, number of ions is fixed. So since number of ions is fixed, so that is not going to increase the conductance. So which one is increasing the conductance? The conductance of a strong electrolyte solution is increased on dilution is due to the increase in ionic mobility of ions
और ड्यू टू इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ आयन्स आयन्स मानकर मूवमेंट बढ़े से तार कंडक्टेंस बढ़िबो आई होप यू ऑल क्लियर दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉरी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एक्चुअली हम एमती लिखा कथा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समस्ते बुझी पारथिबो तो आमे जदि कंक्लूसिव पॉइंट जदि आमे लिखिबा एटा तो मु पूरा बुझाई देली जदि कहार डाउट रहला आउ थरे टिके पॉज करिक आउ थरे टिके देखो जस्ट लास्ट 3 मिनिट देखि देले भी बुझी जिवो सो व्हाट वी कैन से फाइनल कंक्लूजन on dilution conductance of strong electrolyte solution एमती लिखिबो पूरा strong electrolyte solution is increase এটা আমার आंसर is increased which is due to or which is ना खाली due to लिखी दियो is increased due to increase in is due to increase in ionic mobility of the ions present in solution एटा बुझी पारलो सेटा भी काहे कि चाहे तुम लिखि पारिबो which is due to आहुरी क्लियर हो जिवो आंसर which is due to on increasing volume interionic distance increases जहाँ बुझे थी सेटा मु लिखुची interionic distance increases and hence attractive force between ions decreases very simple केते माने सहज आकर लिखि दिया देखो एग्जाम रे जदि पड़ला तुम एतिकी रे स्टॉप कर देले भी चलिबो ड्यू टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन्स इन सॉल्यूशन एतिकी रे स्टॉप कर देले भी चलिबो बुझिबा पई पुनी लास्ट मु रीजन भी लिखि देइची आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस एटा समस्त बुझी जाइथिबो एटा देखा जाने मु कहि दु चाउथरे एंड हेंस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयन्स डिक्रीजेस लिखि दबो समस्ते सो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एटा हमर हो गला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पाई मते लागु जे समस्त बुझी पारथिबो जे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रे काहे कि आयनिक बा काहे कि कंडक्टेंस इंक्रीज कला समस्त बुझी जाइथिबो नंबर ऑफ आयन्स इज फिक्स्ड हियर रिमेंबर नंबर ऑफ आयन्स पाई तमरो कंडक्टेंस बढ़ू नाही कंडक्टेंस बढ़ुची कहा पाई आयनिक मोबिलिटी पाई जेहेतु आयनिक मोबिलिटी बढ़ुची सेथिपाई कंडक्टेंस बढ़िबो नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन सर व्हाई आयनिक मोबिलिटी इज इंक्रीज तार आंसर मु लिखि देइची व्हिच इज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम in or interionic or which is due to on increasing volume interionic distance increases and hence attractive force between ion decreases सेथिपाई तांकर ionic mobility बढ़ुची so I hope you all clear on this the effect of dilution of strong electrolyte समस्ते बुझी गलो now let's discuss what about an weak electrolyte आमे एबे weak electrolyte कथा चिंता करिबा बा weak electrolyte केस रे कोन होची देखो एबे तो से दुटा फैक्टर हम बुझी देइची weak electrolyte आहुरी सहज रे तुम बुझी जीवो so effect of dilution on conductance of weak electrolyte तो चलो आमे एबे weak electrolyte कथा चिंता करिबा weak electrolyte केस रे conductance कोन हबो what will happen to the conductance of
weak electrolyte on dilution. Weak electrolyte रो dilution अबा weak electrolyte रो conductance उपरे dilution कोन इफेक्ट रहबो लेट्स सी. देखो तो एग्जांपल चलो नै जिबा अगेन. सपोज आमे 100 CH3COOH नै छी and we have taken 20 ml volume. आमे 20 ml volume रो वाटर नेले. So what you will find in solution? Solution रो तुमे कोन पाइबो? You know that this acetic acid is a weak electrolyte. Since it is a weak electrolyte, it is not going to dissociate completely. सी completely dissociate हेबो नाही solution को गले. So it will be partially ionized. एटा मु पढ़ाई सारी already. So as it will be partially ionized, तो माने पूरा 100 से acetic acid मतलब acetate ion और H plus मिलिबो नाही. How many I can get? Suppose I am getting 20 H plus and 20 CH3COO minus. माने कितेटा अनडिसोसिएट रहिला माइनस खाली लिखले चलिबो. कितेटा अनडिसोसिएटेड रहिला एबे भी 80 एसिटिक एसिड अनडिसोसिएट हेकी अछि. नाउ इफ यू विल ऐड सॉल्वेंट टू दिस, तमे जदि सॉल्वेंट एठी ऐड करिवो, then what will happen? Suppose I will add 40 ml water more to this. तो जदि आमे 40 ml water आमे आहुरी ऐड करिबा, then what will happen? The undissociated acetic acid, they will also start dissociating. से माने मध्य भांगिबा स्टार्ट करिवे, because आमे वॉल्यूम को बढ़ौछु, आमे सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट आहुरी अधिका ऐड करूछु. So since you are adding more solvent, so what will happen? The undissociated acetic acid will start also dissociates. से माने भी dissociate हवा स्टार्ट करिवे. माने सेही केस रे आमे कोन करिबा 40 ml देला परे suppose we got 60 H plus ion and 60 CH3CO minus. ताहले केतेटा अनडिसोसिएटेड रहिला? अनडिसोसिएटेड एबे भी 40 टा अछि. मींस इफ आई विल इंक्रीज और आई विल ऐड मोर वॉल्यूम टू दिस, सपोज मु 80 ml वॉल्यूम कर देली, ताहले पुनी कण देखि दिले 80 ml कर देला परे ऑल acetic acids are dissociated now. Now in this case what will happen? You will get all, let's suppose this 40 also dissociated. So finally you got 100 H plus ion and 100 CH3COO minus. एबे आउ ऐड कले आउ नंबर ऑफ आयन्स बढ़िबो नाही. And further addition of solvent, the number of ions is not going to increase. किंतु एबे आमे जले ताले एठु आमे दले डाइल्यूशन कले बा जले आमे कंसंट्रेशन को डिक्रीज कले बा सॉल्वेंट रो वॉल्यूम को आमे दले बढ़ेले, सो नंबर ऑफ आयन्स इज इंक्रीज्ड. आउ नंबर ऑफ आयन्स बढ़ुची एटा समस्त क्लियर हे गलो. तो निजे कह जदि नंबर ऑफ आयन्स बढ़िबो ताहेले सेमानंकर कंडक्टेंस कोन हबो. मु जस्ट टिके पूर्वरु कहितली जे नंबर ऑफ आयन्स संगे कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे. सो इट इज क्लियरली वन कैन अंडरस्टूड दैट ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन or on increasing dilution or on dilution or on decreasing the concentration of the solution, the conductance of weak electrolyte is also going to increase. But weak electrolyte ro bhi conductance बढ़िबो, which is due to on dilution the dissociation of electrolyte increases or the electrolyte get more dissociated. That's why the number of ions increase, and as the number of ions is increasing, that's why the conductance will increase. तो dilution हवा द्वारा conductance weak electrolyte रो मध्य बढ़िबो, and the reason is that on dilution number of ions in solution increases. And also you can add that term ionic mobility also increase because volume तुमरा बढ़ुची. तो weak electrolyte केस रे भी conductance बढ़िला एवं strong electrolyte केस रे मध्य conductance बढ़िला. किंतु strong electrolyte केस रे काहे की बढ़िला? That is due to only increase in number of ions, due to increase in ionic mobility. But in case of weak electrolyte, two reasons are responsible for the increasing in conductance. That is the increase in number of ions as well as increase in ionic mobility. बुझी पाला समझते थे कि all clear on this? All clear on this? So now let's start writing the notes. आउ यार notes पठेबा दरकार नै, एबे ही तारा note complete ही जाउची. So let's write the notes. So the on dilution conductance of weak electrolyte solution is increased due to
increase in number of ions in solution as well as both region are sufficient or both region are responsible, as well as increase in ionic mobility. Increase in ionic mobility. इटा क्लियर हो गला समझते. तो आम गोटे फाइनल कंक्लूजन कौन पाइले से कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहू किंबा कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कहू दैट इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन. तो इफेक्ट बुझीगला समझते. ऑल क्लियर ऑन दिस. सो फाइनली आई कैन राइट इन वन बॉक्स डाइल्यूशन बढ़िबा द्वारा बा कंसंट्रेशन कमिबा द्वारा कंडक्टेंस बा जी बढ़िबो, चाहे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हो किंबा वीक इलेक्ट्रोलाइट को हो. इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट one can conclude that the conductance of a electrolyte solution is going to increase on dilution. Dilution बढ़िबा द्वारा concentration कमिबो एवं conductance बढ़िबो. So this is clear to all. समस्ते clear हो गला. conductance बढ़िबो. It is clear to all. Clear to all. All clear on this. All clear on this. चाहे से actually this happens to molar conductance also and also to the equivalent conductance, because we are saying equivalent conductance and molar conductance रे आमे कहबो 1 mole of electrolyte और 1 gram of equivalent of electrolyte कथा कहउथिले आ अन्य किछि कथा कहउ नथिले. तो एटा मन रखि तो कंडक्टेंस भी बढ़े, मोलार कंडक्टेंस भी बढ़े एवं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मध्य बढ़े, बिकॉज ये मोलार कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस केवल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द्वारा डिसाइड करा होतला. तो से जो प्रकार भी कंडक्टेंस कहू, चाहे से कंडक्टेंस कहू, मोलार कंडक्टेंस कहू किंबा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहू, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन. किंतु मु एठी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कथा कहू नाही. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस कौन हुए on dilution, but dilution हबा द्वारा specific conductance कौन होबो. let's see. very simple, बहुत easily जन understood ही परबा बुझी परिबो. effect of dilution of or on specific conductance. specific conductance उपरे dilution रो effect कौन आसीबो. let's see. let's see what is the effect of dilution on specific conductance. प्रथमे तुम क्लियर हो जावा कथा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस. द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन. 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन रो जति कंडक्टेंस आसीबो ताकू आमे कहू स्पेसिफिक कंडक्टेंस. 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले जहा 1 ml कहले मध्य ताहा समानटा मन रखित. तो 1 ml सॉल्यूशन रो जहा भी कंडक्टेंस आसीबो दैट इज कॉल्ड योर specific conductance. एटा समस्ते क्लियर अच्छो. सो ऑन दैट कॉन्सेप्ट लेट्स नाउ डिस्कस. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन बा 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन रो कंडक्टेंस को आमे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहू. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. सो लेट्स डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस. मु कोन करछि ଗୋଟେ एग्जांपल दउछि. लेट्स सी. सपोज आमे 20 ml सॉल्यूशन नै छी. If we have taken 20 ml solution, in that let's suppose conductance is 200 ohm inverse. 200 ohm inverse. Suppose हम 40 ml कर देले तो conductance तो बढ़िबो. Let's suppose the conductance becomes 250 ohm inverse. 60 ml कर देले हमें. Let's suppose the conductance become 300 ohm inverse. 80 ml कर देले हमें. Let's suppose the solution conductance becomes 400 ohm inverse. Now in all these cases, if or 350, let's see 350 ohm inverse. तो एथिरे तो कहारी डाउट नहीं, बिकॉज मु वॉल्यूम बढ़ाऊँगी माने मु कंसंट्रेशन डिक्रीज करुँची. तो वॉल्यूम बढ़ाइबा द्वारा कंसंट्रेशन डिक्रीज करुँची एवं कंडक्टेंसटा बढ़ुची. एथिरे कहारी डाउट नहीं. एटा गोटे मु डाटा सपोज नहीं बुझेबा पाई. आमे स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने कोन बुझुचे. स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने आमे जानिछे जे दिस इज द कंडक्टेंस पर ml बा 1 सेंटीमीटर क्यूब रे बा 1 ml रे जति कंडक्टेंस आसीबो ताको आमे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहू. सो इन द फर्स्ट केस 1 रे ताले स्पेसिफिक कंडक्टेंस केते हेबो बा कापा केते हेबो. कापा माने आमे कोन फॉर 1 ml आमे काढिबा
तो 1 20 ml यदि 200 है 1 ml केते हेबो 10 बिकॉज इट विल बी 200 by 20 200 पर 20 माने 10 बुझी पारला समझते इति की ऑल क्लियर ऑन दिस तो 10 ओम इनवर्स आसी गला ठीक सेमती 40 ml केस 2 रे केस 1 गला केस 2 रे 40 ml 250 आसीला एठी कापा कोन हबो पर ml कोन हबो पर ml व्हाट विल बी कापा पर ml केते हबो कापा 250 by 40 250 by 40 माने केते 250 by 40 250 by 40 केते होची देखो 4 6 जा 24 और 1 2 4 2 6.2 ओम इनवर्स देखो जिते बेले आमे वॉल्यूम को बढ़ेले बा डाइल्यूशन कले स्पेसिफिक कंडक्टेंस कौन होला आगु 10 थिला एबी 6 हे गला माने स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करूची बुझी पारुछो ठीक सेमती 40 रु 60 ml कर देली वॉल्यूम ताहले एठी कौन होला 250 टू 300 हे गला कंडक्टेंस तो बढ़ी गला किंतु कापा बा पर ml कौन होला चेक करो पर ml कापा कौन होला देखो 300 by 60 300 by 60 माने 5 ओम इनवर्स माने देखो पुणी कंडक्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज कला तो डाइल्यूशन करिबा द्वारा आमर कंडक्टेंस तो बढ़ुची किंतु स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करूची डिड यू गॉट माय पॉइंट डिड यू गॉट एटा मु मैथमेटिकली कहली तार क्वालिटेटिव रीजन कौन हम व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस चिंता करो एबे आमर ए जगार 1 2 3 4 अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाउसेस आर देयर एबे 9टा घर को लेकिन यही जगार आयन्स बुलूची लेट्स सपोज सब स्क्वायर अच्छी माने ये सब होउची 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 एंती एटे पूरा वॉल्यूम अच्छी ऑल दिस सपोज इट इज ए और 100 ml वॉल्यूम अच्छी जगार आउ ए जगार हमर आयन्स सपोज टोटल आयन्स अच्छी 200 ताहले एठी गोटे घर रे केते आसीबो एटा हला पूरा 100 ml ए सबुटा हला 100 ml तो 100 ml अच्छी 200 आयन्स ताहले 1 ml रे बा एक घरे केते रहइबो 1 ml रे केते रहइबो 1 ml रे केते रहिला एटा 200 by 100 माने केते सपोज एंती 100टा घर अच्छी मुटे पूरा तो 100टा ब्लॉक करी नाही सपोज 100टा ब्लॉक को नै कि 100 ml हला तो माने गोटे गोटे ब्लॉक माने 1 ml तो 1 ml जदि पूरा 100 ml रे जदि 200 रहिला 1 ml रे केतेटा आयन रहिला 1 ml रे केतेटा आयन रहिला 1 ml रे रहिला 2 आयन्स डिड यू गेटिंग माय पॉइंट तो नंबर ऑफ आयन्स 200 आयन्स थिला मन रखो 200 आयन्स थिला 100 ml सॉल्यूशन थिला ताले 1 ml रे केतेटा आयन रहिला 2टा आयन रहिला एबे सपोज ए 100 ml को मु बढ़ाई देली वॉल्यूम माने मु डाइल्यूशन कली सपोज एरा 100 ml न करी कि मु 200 ml कर देली तो 200 ml रे नंबर ऑफ आयन्स तो चेंज हेबो नाही नंबर ऑफ आयन्स इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ए 200 आयन्स ही अछि केवल मु वॉल्यूम को बढ़ाई छी तो 200 आयन्स जो रहिला से 200 आयन्स केते जगह रे रहिले 200 ml रे रहिले तो 1 ml रे केतेटा आयन रहिला 1 ml रे रहि गला 200 by 200 माने 1 एबे चेक करो ताले 1 सेंटीमीटर क्यूब रे बा 1 ml रे नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हला कि नहीं वॉल्यूम बढ़िबा द्वारा एठी 1 ml रे 2टा आयन थिले तो एठी 1 ml रे गोटे आयन रहिला तो चिंता करो मु जो पॉइंट कहूची जे स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करिवो दिस एटा तो मैथमेटिकली मु बुझी देली किंतु रीजन तार कोन द रीजन इज दैट बिकॉज द नंबर ऑफ आयन्स पर सेंटीमीटर क्यूब बा पर ml डिक्रीजेस बुझी पारलो तो नंबर ऑफ आयन्स जदि डिक्रीज कला तो सेथि पय आमे कहिबा स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज करिवो बुझी पारलो बिकॉज नंबर ऑफ आयन्स सारे कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे तो एठी जदि 100 ml सॉल्यूशन रे पर ml रे 2टा आयन रहिला 200 ml सॉल्यूशन रे पर ml रे गोटे आयन रहिला means on dilution the number of ions per centimeter cube per ml decreases and since the number of ions per ml or per centimeter cube is decreasing that's why we can conclude that on dilution the specific conductance will decrease. I hope you are very clear on this. मुझे conceptually भी बुझे देली reason भी कही देली और गोटे मैथमेटिकली भी गोटे मूर्ख भी जिंदगी बुझी पारिबो बा गोटे नॉट मूर्ख यू कैन से लायमैन जड़े माने जड़े केमिस्ट्री विषय जानी भी नथिबो अल्प किछि जानी थिबो दैट ए स्टूडेंट कैन आल्सो अंडरस्टैंड एथे किछि बड़ किछि कांसेप्ट आउ यूज हेई नाही तो रीजन बुझी पारला ताहले डाइल्यूशन हेबा द्वारा कोन हला सो ऑन डाइल्यूशन व्हाट हैपेंड ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन
is decreasing. लिखि दियो. On dilution, specific conductance of a solution decreases. काहे की reason कौन? Reason is, or this is due to, on dilution, specific conductance of a solution decreases due to decrease in number of ions per centimeter cube or per ml. आउ थोड़ा मुझे लिखी देखो. On dilution, specific conductance decreases. और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहाँ है? ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो भी इलेक्ट्रोलाइट से लो. स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन decreases due to, काहे की डिक्रीज कला? डिक्रीज इन number of ions per centimeter cube or per ml solution. बुझी पारल कि समस्ते? ऑल क्लियर ऑन दिस? तो मन रखि थो सब बेले डाइल्यूशन बढ़िबा द्वारा कंडक्टेंस बढ़िबो, मोलार कंडक्टेंस बढ़िबो. बिकॉज ये केवल तुमर नंबर ऑफ मोल्स ही एठी खाली डिसाइड करा जाए इलेक्ट्रोलाइट रो. और एठी केवल इलेक्ट्रोलाइट रो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसाइड करा जाए. तो इथरे किछ चेंजेस आसीबो नाही. तो डाइल्यूशन करबा द्वारा कंडक्टेंस बढ़े, मोलार कंडक्टेंस बढ़े, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मध्ये बढ़े, किंतु स्पेसिफिक कंडक्टेंस कमिबो. आ मोलार कंडक्टेंस रो जहा रीजन तमे बा कंडक्टेंस रो जहा रीजन, मोलार कंडक्टेंस रे भी सेही रीजन लिखि पारिबो, आ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रे भी सेही रीजन लिखि पारिबो. किंतु स्पेसिफिक कंडक्टेंस ता डिक्रीज करिबो ऑन डाइल्यूशन. देखो डाइल्यूशन बढ़िबा द्वारा कंडक्टेंस बढ़िबो, मोलार कंडक्टेंस बढ़िबो, रीजन समान, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़िबो, किंतु स्पेसिफिक कंडक्टेंस कमिबो. गॉट इट? समस्ते बुझी पारलो? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कमिबो. ऑल क्लियर ऑन दिस? ऑल क्लियर ऑन दिस? ऑल क्लियर ऑन दिस? समस्ते याकू बुझी गलो जे कंडक्टेंस कोन हला? इफ बढ़िला डाइल्यूशन हवा द्वारा, मोलार कंडक्टेंस कोन हला? सी भी बढ़िला. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कोन हबो? सी भी बढ़िबो, किंतु स्पेसिफिक कंडक्टेंस कमिबो. आ समस्त रीजन समान, तुम समान रीजन लिखि पारिबो, कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करिवो. मु बुझाई सारी छी. एटा को तुम आउ गुटे फैक्टर भी बुझी पारिबो जे मोलार कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस केमदी बढ़ुची. तमर कुआ हेतिला दैट मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू वी. देखो कापा इनटू वी माने कापा और वी, कापा एंड वी both are inversely proportional to if molar conductance is fixed. जदि मोलार कंडक्टेंस फिक्स्ड अच्छी, देखो जदि मोलार कंडक्टेंस फिक्स्ड अच्छी ताहेले कापा बढ़िले वॉल्यूम कमिबो, आउ कापा कमिले वॉल्यूम बढ़िबो. गॉट माय पॉइंट? तो ताहेले आमे यदि कापा को आमे यदि चिंता करिबा, इफ यू विल सी टू द कापा, एटी द वॉल्यूम बढ़ुची, वॉल्यूम जदि बढ़ुची, आमे गोटे काम करू. लेट्स सी वन थिंग. ए सॉल्यूशन तो जाने, ए रिलेशन समस्त ऑल क्लियर ऑन दिस रिलेशनशिप. ना लेट्स सी कापा. आमे कापा कथा चिंता करू. कापा इज इक्वल टू व्हाट? यू विल फाइंड मोलार कंडक्टेंस बाय वी. यू विल फाइंड मोलार कंडक्टेंस बाय वी. तो निजे चिंता करो, यदि कापा को मुझे फिक्स्ड कर देवी, लेट्स सपोज कापा इज फिक्स्ड, तो कापा फिक्स्ड केते बेले रहिबो? जदि वॉल्यूम बढ़िले मोलार कंडक्टेंस भी बढ़ुथिबो ताहले कापा फिक्स्ड रहिबो, अदरवाइज नॉट. तो चिंता करो सब बेले वॉल्यूम और मोलार कंडक्टेंस दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर. देखो एठी कापा और वॉल्यूम भितरे इनवर्सली प्रोपोर्शनलशिप रहिबो, किंतु मुझे मोलार कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम को जब कंसीडर करी, कापा को फिक्स्ड कर देवी, इट मैथमेटिकली मुझे बुझाऊँ. हाँ जब मुझे कापा को फिक्स्ड कर देवी ताहले वॉल्यूम ऑफ मोलार कंडक्टेंस दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. माने वॉल्यूम जब बढ़िबो ताहले मोलार कंडक्टेंस बढ़िले जाई कापा फिक्स्ड रहिबो, अदरवाइज नॉट. जदि मोलार कंडक्टेंस जदि वॉल्यूम बढ़ुची आउ ये जदि कमी जिवो, देन हाउ इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड? ये फिक्स्ड रही पारिबो नाही. जदि इता को आमे बढ़ेले ये मध्ये बढ़िबा कथा. माने जेमिति सपोज मु एठी 20 मु लिखिची, लेट सपोज
100/5 इज इक्वल टू 20 मुझे 20 को फिक्स करदेली माने कापा इज फिक्सड ताले याको मु बढ़े देली सपोज 5 को मु 20 करदेली इफ दिस बिकम्स 20 माने वॉल्यूम जदि बढ़िला तो ये कौन ये केते हेले ताले 20 हबो इफ इट्स बिकम 20,000 or sorry 20 times of 100 means sorry 4 times चल 4 times sorry 400 ये जदि 400 हेबो ताहले जाई 20 आसीबो 5 20 4 4 टाइम यस देखो तो ये यदि फिक्स्ड हो गला ताले वॉल्यूम यदि बढ़िला कंडक्टेंस भी बढ़िला नहीं गट माय पॉइंट एटा मैथमेटिकली कहूँ एक्चुअली नले रीजन समान एटी भी नंबर ऑफ आयन्स बढ़िबो आयोनिक मोबिलिटी बढ़िबो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते केवल आयोनिक मोबिलिटी बढ़िबो ठीक सेमती यही जगह भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते आयोनिक मोबिलिटी बढ़िबो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मध्ये बढ़िबो माने कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलार कंडक्टेंस ऊपर डायल्यूशन समान इफेक्ट रहे रीजन इज सेम बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करे और ये मैथमेटिकल पार्ट भी मतलब लागु बुझी पारथिबो देखो कापा और वी जेतला मोलार कंडक्टेंस फिक्स्ड रहउची दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर नाउ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप आई कैन हैव kappa is equal to molar conductance by V. Now if I will make kappa constant, kappa को constant यदि मैं कर देली बा kappa fixed रहिबा पाई कोन दरकार हमको this if it is increasing it will also increase बा वॉल्यूम जदि बढ़िबो ये जदि बढ़िबो ताहले ये फिक्स्ड रहिबो अदरवाइज नॉट बुझी पारलो ठीक सेमती इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी समान बिकॉज आम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रिलेशन भी समान लिखिथिले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन kappa into V or you can say kappa is equal to equivalent conductance by V. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बाय V तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वॉल्यूम जदि एठी बढ़िला ताले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मध्ये बढ़िबो बिकॉज kappa इज फिक्स्ड एटा बुझी पारला समझते एटा मैथमेटिकली कहली तो रीजन समान तुम लिखि पारिबो तो तळे खाली नोट लिखला बेले आउट लिखि देबो मोलार कंडक्टेंस हेडिंग दे देबो यू विल राइट दैट मोलार कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो इंक्रीज और ऑन डायल्यूशन मोलार कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विल इंक्रीज पुणी से इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग नहीं थिबो बा स्ट्रॉन्ग जदि लिखि थिबो तारे सेठी लिखिबो ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी आ जदि वीक नहीं थिबो बा मोलार कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जदि नहीं थिबो सेठी लिखिबो बोथ रीजन दैट मोलार कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज ऑन डायल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी एज वेल एज नंबर ऑफ आयन्स ठीक सेमती इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल आल्सो इंक्रीज ऑन डायल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी एंड नंबर ऑफ आयन्स बुझी पारलो एतकी समझते तो डायल्यूशन रो इफेक्ट क्लियर हो गलो एतकी समझते नोट कंप्लीट करथिबो ओके थैंक यू।